इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने धर्मे भाई की राम राम। और साथियों, आज बहुत कुछ हम विषय लेकर आए हैं, जिसमें आज का जो चर्चा का हमारा विषय रहेगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना। और साथ के साथ भाई जो नई फसल नई उमंग में हम जो बात करेंगे, नए बाग लगाने व वृक्षारोपण में सावधानी के बारे में बात करेंगे। और मोटे अनाज का जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उस विषय पर भी अच्छी तरह बातचीत होगी और कुछ मनोरंजन भी है। लेकिन पहले एक संदेश सुन लेते हैं और उस संदेश के बाद हम बातें ने आगे बढ़ाओगे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देवगे। तो सुनते हैं ये संदेश। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Sri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is e-NAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is
Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्। तो साथियों ये तो आपने संदेश सुना G20 एग्रीकल्चर का। और अब बात आगे बढ़ा लेते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। और भाई साथियों हमारी जो शुरुआत एक प्रश्न तो ज़रूर होती है, और आज का जो कृषि प्रश्न है भाई बहुत आसान है। और इस प्रश्न के बारे में आपको बता देते हैं कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। भाई उस ज़िले का नाम ज़रूर बताइए। और इसका जो प्रश्न का जो उत्तर है साथियों, आप हमारे को 9466021336 द्वारा SMS के माध्यम से दीजिए, यानी कि 94 660 21 336 पर आपने इस प्रश्न का उत्तर देना और आपके नाम भी बताए जाएंगे। और भाई ये जो 6:50 से पहले आप हमारे को इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका आपने उत्तर देना है। और आज जो कार्यक्रम की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें साथियों जो चर्चा हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना। भाई ये प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना क्या चीज़ है, देखिए कुसुम जो योजना सिंचाई से संबंधित है और किसानों को सिंचाई का एक अच्छा माध्यम देने के लिए भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो शुरुआत की गई थी। और सरकार द्वारा इस योजना तय भाई 34,422 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है इसमें किया गया है। और उम्मीदवार जो किसान से इसमें 60% तक केंद्र सरकार की तरफ तक भाई प्रदान किए जा रहे हैं। और इसके साथ 30% ऋण बैंक द्वारा और 10% जो का किसानों का जो भुगतान इसमें करना होगा। और भाई देखिए योजना बहुत बढ़िया है और इस योजना के माध्यम से आप अपनी मजबूती कर सकते हैं। और भाई जो इसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ही किसानों के जो डीजल पेट्रोल से चलने वाले जो पंपों को सौर ऊर्जा पंप में बदलने का जो कार्य है वो शुरू किया गया। और इस योजना की भाई घोषणा पूर्व वित्त मंत्री द्वारा ये की गई थी। और किसानों को सिंचाई का जो एक अच्छा माध्यम देने के लिए भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत है। और सरकार भाई 34,422 करोड़ रुपए भी इसमें प्रावधान किया गया है। और देखिए जो इस योजना के तहत आवेदन के लिए भाई इसमें कौन कौन से दस्तावेज है, ये सारी जानकारी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए जो ये महत्वपूर्ण ज़रूरी से है। और भाई आजकल तो जिस तरह ऑनलाइन जो सारी चीज़ चल रही है, और भाई घर बैठे सारी योजनाओं की महत्वपूर्ण जो पोर्टल है सरकार के माध्यम से हमारे समय को भी बचा रही है, हमारे धन को भी बचा रही है। और साथ के साथ भाई जो बीच में दलाल मिला करते भाई पीछे एठ लिया करते, और उस चीज़ तभी कति छुटकारा अच्छी तरह भाई पंडा छूट गया है। तो सरकार बहुत अच्छा डिजिटलाइजेशन जो कर रही है, तो ये इस योजना का हम नाम बता रहे भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। और भाई साल 2023 में शुरुआत इसमें बनी थी। और शुरुआत भाई राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय कृषि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। और जो आवेदन है साथियों इसमें आपने ऑनलाइन करना पड़ेगा। और जो इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण के लिए तो है, क्योंकि देखिए जो पर्यावरण खराब हो रहा है और डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही है उस न साइड में करके हम जो भाई सिंचाई पंपों और सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई पंपों में इसमें बदल रहे हैं। और भाई इसके अंदर भाई देश का किसान कहीं का भी हो, कोई से भी राज्य का है, वो इसमें लाभ ले सके है। और PMKY के उद्देश्य भाई देखो जो कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को तो सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करी जा रही है। और कई ऐसे राज्य भी है जड़ा पानी की भाई कमी से उसकी वजह से भी भाई फसल खराब होती जा रही है। तो फिर किसानों को जो सोलर पैनल लगाने में असमर्थ रहते, तो इन समस्याओं का भाई ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत बड़ी योजना जो सोलर पैनल लगवाए जा रही है। तो इन सोलर पैनलों द्वारा बिजली का जो निर्माण भी हो रहा है और जिसका इस्तेमाल किसान अपने घरों में कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली को जो सरकार बेच भी सकती है और PMKY के माध्यम से किसानों की भाई आय भी इसमें बढ़ रही है। तो PM कुसुम योजना भाई आवेदन दस्तावेज़ की जब हम बात करते हैं भाई कौन से कागज़ ज़रूरी चाहिए इसके अंदर, एक तो देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए और किसान होने का जो
प्रमाण पत्र है, उसका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ज़मीन का वितरण है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर और भाई पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो। और भाई इसमें ये सारी चीज़ होनी चाहिए के साथ भाई ऑनलाइन सारी चीज़ व्यवस्था है, तो योजना के माध्यम से किसानों को भाई इसमें लाभ प्राप्त होता है। और लाभों की जो जानकारी की जो बात इसमें करें भाई, देखो इसमें पीएम के तहत लगने वाले सोलर पैनल में किसानों को केवल 10% का भुगतान इसमें करना पड़ेगा। और जिस भूमि में पानी की कमी से उसके कारण अनाज नहीं उगाया जाता था, अब भाई उस ज़मीन में भी अनाज उगाया जा सकता है। सोलर पैनल लगने से सोलर पंप के साथ बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है। और प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना से है, इसके माध्यम से किसान भाई उसमें आय में बढ़ोतरी होगी। और योजना के माध्यम से एक तो आर्थिक जो तंगी हुआ करती भाई, जो कई गलत कदम उठा लिया करते, आत्महत्या कर लिया करते, उस पर भी एक लगाम सी लग रही है। और सोलर पैनल का जो बार लगने के बाद बार बार खर्चे तय नहीं करने पड़ते। और कुसुम योजना के तहत भाई ये जो लगने वाले सोलर पैनलों से बिजली बनेगी, उसका उपयोग भी किसान अपने घर में कर सकेंगे। और भाई योजना के माध्यम से जो पर्यावरण है उस पर भी किसी भी तरीके का भाई कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भाई इसमें ये फार्म भरने के भाई इसमें आप अपना सोलर पंप चालू करवा सकते हैं। और भाई इसके साथ साथ ऑनलाइन सारी व्यवस्था से और सरकार भाई पूरा अंगा लगा रही है। और कोशिश हमारे लिए ही हो रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, ताकि हमारा जो किसान है आत्मनिर्भर रहे और मजबूत रहे। और आर्थिक तौर पर मजबूती के साथ साथ वो देश को अच्छे भाई बच्चे देवा, हर एक चीज़ में जो आगे बढ़ रहे, चाहे देश की सीमा की बात करें, चाहे वह भाई गोल्ड मेडल लाने की बात करें, शिक्षा के स्तर की बात करें, तो भाई देखो आर्थिक तौर पर सरकार बहुत मजबूती कर रही है। तो इसमें इसका हमने भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ हमने उठाना चाहिए। और साथियों या तो बात कर ली हमने प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, और इसी तरह साथियों अब थोड़ी जानकारी कल के कार्यक्रम की भी ज़रूर दे देते हैं, लेकिन भाई मौसम का ज़रूर बता देते हैं। भाई देखो राम जी कती अच्छी तरह बादला तक घिरा हुआ है, और अधिकतम की बात तो 38 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया था। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 33 और जो न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई जड़े तक बारिश की बात करें तो भाई कल का परसों का दिन थोड़ा साफ सारा होगा, लेकिन भाई सोमवार के बाद तकरीबन बारिश के चांसेस ज़्यादा हो रही है। और 2-3 दिन तो भाई राम जी अच्छी तरह बरसेगा। तो कोशिश ज़रूर करें कि वह अपने काम को अच्छी तरह निपटावे और अपनी व्यवस्थाओं का ज़रूर इसमें ध्यान रखें। और अब बात भाई कर लेते हैं अगले कार्यक्रमों की। और आज तो भाई शनिवार है और कल रविवार से, तो रविवार में हम कार्यक्रम लेकर आते हैं थारी चिट्ठी मारेगी, तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिए, घंटे का कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ भाई जो सोमवार ने हम कार्यक्रम किसान वाणी लाएंगे, और इसमें जो चर्चा रहेगी सोमवार को, एक तो भाई इसमें अटल भूजल योजना की जानकारी दी जाएगी, यह भी बहुत बढ़िया जानकारी से। और सोमवार को जो हम आज की नसीहत में बात करेंगे मुर्गियों के मुख्य रोग और उसके समाधान के बारे में। और इसी तरह भाई जानकारी जो प्राकृतिक खेती की भी रहेगी, क्योंकि नीम पेस्ट किस तरह बना हुआ है, किस तरह उपयोग से है, ये सारी जानकारी भाई तमाम आप सोमवार का कार्यक्रम छोड़ियो मना और इसमें ज़रूर सुनिए। तो अब बात दूसरी कर लेते हैं, दूसरे विषय की। साथियों देखो ये तो हमने कुछ जानकारियाँ दी थी, और अब बात हम जो करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बाद, इसमें जो नई फसल, नई उमंग भाई, नए बाग लगाने व वृक्षारोपण में सावधानी की, इसमें हम बात ज़रूर इसमें कर ले। क्योंकि देखिए वृक्षारोपण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी तो ज़रूर है, क्योंकि मनुष्य जब से पृथ्वी पर पैदा हुआ से जब तक आज तक भाई वो अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पौधों पर, वृक्षों पर ही निर्भर है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जब हम इसकी बात करें तो उनका और भी महत्व है। और ईंधन, चारे और भाई छोटे कृषि औजारों के लिए जो ग्रामवासी को वृक्षों की जरूरत पड़ती है, और शहरों के अंदर भी पड़ती है, लेकिन साथियों जो वृक्ष ही उन्हें और पशुओं की शीतल छाया प्रदान करते, तो वृक्ष हमारे जीवन में इस हद तक जुड़े से कि चाहे धार्मिक ग्रंथों की बात करें, पौराणिक कथाओं की बात कर ले, किंवदंतियों में भी बात कर ले, तो इनका उल्लेख किसी न किसी रूप में आता है। और भाई पेड़ों की कमी के कारण वायु, जल और भूमि प्रदूषण के जो खतरे उत्पन्न हुए, तो भूमि को बंजर होना जो शुरू हो रहा है,
पानी का स्तर जो नीचे जा रहा है, तो वर्षा की जो कमियाँ इससे ईंधन का अकाल पड़ रहा है और पर्यावरण दूषित हो गया था। इसलिए भाई पर्यावरण को स्वस्थ रखनी चाहिए और आर्थिक उन्नति के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेड़ इसमें लगाने चाहिए। और साथियों, जो हम जो इसमें बात इसमें कर रहे हैं कि भाई जो नए बाग लगाने और वृक्षारोपण में जो सावधानी की है, एक तो भाई इसमें पौधे लगाने का उचित समय का हमने ध्यान रखना चाहिए। जिन स्थानों पर पानी खड़ा नहीं होता वहाँ पौधारोपण वर्षा के आरंभ होते शुरू हो जाता है, और इसके साथ जहाँ पर वर्षा ऋतु में पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पर पौधारोपण का कार्य वर्षा के पानी के सूखने के इसमें बाद ही किया जाना चाहिए। पॉपुलर पौधे जनवरी फरवरी में वहाँ लगाने चाहिए। और पौधरोपण के लिए जो सावधानी की बात करें तो भूमि की जांच इसमें ज़रूर करवानी चाहिए। किसी भी भूमि पर पौधारोपण करने से पहले उसकी भाई लवण की मात्रा ईसी की जांच करानी चाहिए। इसके लिए भाई 30-30 सेंटीमीटर की गहराई के अलग अलग नमूने भर के हम भाई ले जा सके प्रयोगशाला में। और इसी तरह जो गड्ढे तैयार इसमें करे जाते हैं भूमि में, गड्ढे हमेशा एक पंक्ति में और समान अंतर पर खोदने चाहिए। भाई 45 सेंटीमीटर लंबे हो, 45 सेंटीमीटर चौड़े हो, 45 सेंटीमीटर गहरे खोदे हुए, तो भाई ये ज़रूर जानकारी इसमें रखनी चाहिए। और पौधा किस तरह लगा हुआ है इसमें भी भाई ज़रूर सावधानी रखें। एक गड्ढे में एक ही पौधा लगा हुआ और पौधे की जो मुख्य जड़ से है वह भाई सीधी होनी चाहिए। पौधा गड्ढे में लगाने से पहले ही पॉलीथीन की थैली तो भाई ब्लेड है या कोई धारी चीज़ तो उस पर निकाल देना चाहिए। और लगाने के तुरंत बाद भाई पौधे की सिंचाई करनी चाहिए। और पौधारोपण की जो देखभाल की बात करते हैं, पौधारोपण के 10 से 15 दिन के बाद हमने पौधों के चारों ओर आधे मीटर तक भाई निराई करनी चाहिए। बरसात के जब टाइम कराए तो बाद उसके बाद 20 से 30 दिनों के अंतराल पर पानी देना चाहिए। और सिंचाई के बाद पौधों के आसपास की मिट्टी को ढीला करना चाहिए। और भाई देखो ये जो मौसम से बहुत बढ़िया चल रहा है। और एक निवेदन भी हम करते हैं कि भाई जड़ा भी जावे, मान लो कोई हम फल खाते हैं, चाहे भाई जिस तरह जामुन खाई तो गुठली हो उसकी, तो इसलिए आम की गुठली हो, जो ये काकड़े बोल देते हैं, जो बीज है जिसको हम बोलते हैं कुल मिलाकर, वो भाई आप जब कहीं जा रहे हो तो कच्चे स्थान पर उसको फेंक देवे ताकि वहाँ पर भी एक पौधा पनप जावे, क्योंकि बारिश का भी मौसम है और एक वो जो जड़ सही पकड़ लेता है तो साथियों हरा भरा तो हमारा पूरा क्षेत्र रहेगा। तो कोशिश हमने ज़रूर ये करनी चाहिए। तो साथियों ये तब बात हमने करी नए बाग लगाने और वृक्षारोपण में सावधानी के बारे में, और मोटे अनाज के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की भी बात करेंगे। लेकिन भाई घनी देर होगी, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए और मनोरंजन ज़रूर सुनते। और इस लोकगीत के बाद हम बताओगे जो आज का कृषि प्रश्न हमने पूछा था उसका उत्तर ही बताइए किसने दिया। तो कार्यक्रम किसान वाणी में सुनते हैं ये रागनी। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोस्त धैर्या न करते उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोस्त धैर्या न करते कहन की कोना एक म्यान में दो बरछी दिखे कह रहन की कोना दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की कोना जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की कोना जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की बोला न्यू आवे धन न्यू है चाला जा न्यू आवे धन न्यू है चाला जा गैल मरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोस्त धैर्या न करते उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते
नादान अवस्था क्यों करे घर देता हूँ मैं 10 मानस का अच्छे हो जावे क्यों कर जीव हलाऊं मैं बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा बब्बर शेर भी भूखा मर जा बब्बर शेर भी भूखा मर जा पर डाब चर्या न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष दया न करते उसकी करने उसके आगे जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष दया न करते एक बेल का दो तुम्बे हो एक ही हो से उनकी जात एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ एक बाप का दो बेटे हो एक ही उनका हो से गात एक तेसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात एक तेसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात पेज के ऊपर जहर का प्याला पेज के ऊपर जहर का घूंट भरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते उसके करने उसके आगे जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते हाँ मंगराम कहे इस दुनिया में अपना प्यारा घर लागे न्यून बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे बद से तो बदनाम बुरा मन बदनामी ते डरे लागे तन्ने इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे भाई गला बैर करे वो भाई गला बैर करे वो कदे फिरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सारे दोष धरा न करते उसके करने उसके आगे जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सारे दोष धरा न करते तो साथियों ये तो बात हमने इस लोकगीत तो पहले बात करे थे नए बाग लगाने की और वास्तव में देखियो साथियों कोशिश हमारी ऐसे ही होनी चाहिए और पेड़ लगाने की पौधे लगाने की जहाँ तक बात है हम पेड़ पौधे भाई किसी की याद में भी लगा सकते हैं जन्मदिन पे भी लगा सकते हैं सालगिरह पे भी लगा सकते हैं या कोई हमारा जो प्रिय है वो भाई से संसार से चला गया है तो एक उसकी याद में भी हम इसमें पौधा लगा सकते हैं ताकि एक हमें ये अनुसरण रहे हमने यो ध्यान रहे भाई देखो आज भी वो व्यक्ति यहाँ पर जीवित है एक पेड़ के माध्यम से। तो साथियों कोशिश ज़रूर करिए कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए और मौसम बहुत बढ़िया है और इस मौसम में तो भाई पानी की भी ज़रूरत नहीं है और अपने आप रुखाड़ उसकी हो जाएगी। और अब बात हम जो कर लेते हैं साथियों महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं भाई एक किसान कॉल सेंटर है और
उसका जो नंबर है 1551 यानी कि 1551, और महत्वपूर्ण जानकारी आप भाई घर बैठे किसी भी क्षेत्र में जो किसानों से संबंधित हो वो सारी जानकारी आप किसान कॉल सेंटर से इसमें ले सकते हो। और इसी तरह एक PIB ऐप है, और इसके माध्यम से भाई कृषि जगत से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो, कुछ भाई प्रश्न हो, कुछ उसके उत्तर जानना चाहते हो, या पर कोई मन के अंदर किसी भी चीज़ की शंका हो, बातचीत करनी हो, तो सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी PIB ऐप के माध्यम से है। और इस तरह आप अपने जीवन के स्तर को भी इसमें बढ़ा सकते हैं। और अब भाई कृषि प्रश्न की ज़रूर बात कर लेते हैं। और प्रश्न हमने करा था केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, और भाई इसका जो उत्तर है हिसार, और इसका जो उत्तर हमें दिया है चंडीगढ़ से है प्रोफेसर जय नारायण देराज। इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भाई हिसार में स्थित है। और इसके बाद अब एक महत्वपूर्ण जानकारी भाई मोटे अनाज की ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि भाई मोटे अनाज वर्ष एवं 2030 के माध्यम से इसमें जो मिलेट्स ईयर हम मना रहे हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर भाई इसका प्रभाव तो पड़ता ही है, और मजबूती हमें शारीरिक क्षमता देता है। और भाई वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, अगर जो भाई मोटे अनाज को जो हम अपनाओगे तो इससे महामारी तभी दूर हो सकते हैं। और इस 2019 में कोरोना महामारी के आने के बाद मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफ़ी बढ़ गई है, और कई शोधों से पता चला कि भाई यह जो समस्या है यह लगभग सारी उम्र के लोगों को, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उसमें भाई सारे का आ गई है। तो आधुनिक दौर में जो चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं ने जैसे लोगों को जकड़ लिया है, तो विशेषज्ञों का भाई कहना कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और इसे दूर करने के लिए भाई इसमें जो मोटे अनाज की वो महत्वपूर्ण भूमिका ज़रूर इसमें हो सकती है। तो मोटा अनाज हमने ज़रूर लेना चाहिए, और मोटा अनाज मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और मोटे अनाज पोषक तत्वों जिस तरह मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, इसमें भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर रहा है, और कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ने से भी रोकते हैं, जिस तरह शारीरिक विकार कम हो जाते हैं और मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। तो मोटे अनाज के सेवन से शरीर में निरंतर ऊर्जा का संचार बना रहता है, और मोटे अनाज में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है, और सेरोटोनिन शरीर में तनाव को कम करता है और अनिद्रा की परेशानी को भी दूर करता है। तो अनिद्रा भी एक प्रमुख मानसिक समस्या में से एक है, और हम कई बार देखते भी साथियों कि रात में 10 भी बज जाते, 11 भी बजते, हमने जल्दी से नींद नहीं आती और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो मोटा अनाज हमने इसमें ज़रूर लेना चाहिए। तो साथियों आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो आज के अंक में इतना ही। धर्मे भाई को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।